Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 4th and its part 2nd. In this video we will discuss about the topic of base of accounting. And the last video I have already discussed about the process of accounting. Let us start the topic. Base of accounting. The most significant function of accounting is to determine profit earned or loss incurred by the business during the accounting period. Profit earned or loss incurred by the business can be determined either by cash basis of accounting. Second is accrual mercantile basis of accounting. It means that the basis of accounting, through this we can easily, basis of accounting are classified by the two systems, cash basis of accounting and second is a accrual basis of accounting. We use this method and can easily determine the profit earned and loss incurred by the business during an accounting period. We can use this method and easily identify the profit earned and loss incurred by the business during an accounting period. This is very important concept, that is a profit earned. How much profit earned during any particular period of accounting, that is a 2020 and 21. In this period we can easily identify the profit earned and loss incurred by the business in this period and easily identify by the using of these two systems. First is a cash basis of accounting. Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when the cash is transacted, whether received or paid. It means revenue is recognized on receipt of cash. Likewise, expenses are recorded and incurred when they have been paid. The difference between the total income and total expenses represent profit and loss of a business for accounting period. It means that कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड में कैश इज ट्रांसैक्टेड. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन कैश बेसिस में होंगे और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उन कैश बेसिस सिस्टम को ही कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो पूरी तरह से पेड हो गए हो या तो फिर रिसीव हो गए. पेड हो जाने का मतलब अगर हम किसी को कैश दे रहे हैं, किसी से उसके बदले में गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसको कैश पेड कर रहे हैं तो पूरा कैश पेड कर दे, कोई भी अमाउंट क्रेडिट पर ना हो. सिमिलरली हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के बाद या उसको गुड्स को वो देने के बाद, then after that we will receive the fully amount of cash. So this system is very helpful to determine the profit and loss, how much amount of expenses and how much amount of income related to any particular period, accounting period. So we can easily identify through this method how much cash are paid, fully paid, or how much cash are received in any particular period. The main thing is that when the cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance and accrued income are not considered. Main thing is this कि वो सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड इस अकाउंटिंग उसमें प्रोसेस में नहीं करेंगे जो चीज़ हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो. इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है. वो एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन ड्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. वो एक्सपेंसेस जो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ड्यू हो, मतलब पेड नहीं किया गया हो, उस चीज़ को हमने परचेज कर लिया हो, ले लिया हो वहाँ से सर्विस और उसको पूरा जो अमाउंट है उसको उस पर्सन को नहीं पेड किया गया है, तो उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में पेड नहीं हुआ. सेकेंड इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? आर दोस एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन पेड इन एडवांस. वो एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे कर चुके हों किसी सर्विस को, किसी गुड्स को रिसीव करने से पहले. तो
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग जो हमने पेड ना किया हो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, वो सारे एक्सपेंसेस होंगे। और प्रीपेड जो हम एडवांस में पेड कर चुके हैं उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? ये एक करंट एसेट है, इसको करंट एसेट की तरह हम ट्रीट करते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? वो हमारे करंट लायबिलिटीज़ होती है। बैलेंस शीट में जब ये रिकॉर्ड हो तो ये करंट लायबिलिटीज़ है। और करंट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमको एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ही उसको हमको आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द 20 मंथ्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकर्ड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस, सेम इसी तरह से कि जो इनकम हमने एडवांस में रिसीव कर लिया उसको भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसी तरह से सिमिलरली जो अकर्ड इनकम है, जो हमने उस गुड को सोल्ड कर दिया गया मगर उसकी इनकम नहीं रिसीव हुई है, तो वो सारे इनकम भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड होंगे। इट मीन्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर फुल्ली पेड एंड फुल्ली रिसीव। Only these transactions are recorded. Otherwise, all the transaction that is outstanding expenses, prepaid expenses, occurred income and income received in advance, these are expenses and income are not recorded on the cash basis of accounting. Receipt and payment account prepare in the in case of not for profit organization such as charitable institute, club, school is example of accounting of on cash basis. तो रिसिट ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग जो प्रिपेयर किया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करती है? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, जो प्रॉफिट के लिए वर्क ना करे, जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हुआ, क्लब हुआ और स्कूल, ये एक एग्जाम्पल है जो वर्क करते हैं प्रॉफिट के लिए नहीं। तो वो सारे लोग जो हैं अगर अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर, किस बेस पर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम जो ड्यू हो या जो एडवांस में पेड हो गए हो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। एडवांटेजेस इज it is a simple basis of accounting as adjustment of outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income received in advance is not made. ये एक सिंपल अकाउंटिंग है। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस को नहीं रिकॉर्ड किया जाता जो या एडवांस में हो गए या ड्यू हो। Second, this approach is more objective as very few estimate and adjustment are made. तो इसकी जो ये अप्रोच है कैश बेसिस ऑफ वो अकाउंटिंग, वो जो है बहुत ही दिस अप्रोच इज़ मोर ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एस्टिमेट और एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। This basis of accounting is suitable for those enterprises where most of the transaction are on cash basis. और ये जो अकाउंटिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये उसी एंटरप्राइजेस में, उसी बिजनेस में सुटेबल होगा जहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर ही होता है। अब सिमिलरली हर चीज़ के एक एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होगी। First disadvantage is it does not give a true and fair value of profit and loss and financial position of an enterprise because it ignores the outstanding prepaid expenses and accrued income received in advance. तो इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपनी फेयर और ट्रू पोजीशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं बताता, ना ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उस इंटरप्राइजेस की पता चल पाती है, क्योंकि वो इन सारे एक्सपेंसेस और इनकम को इग्नोर कर देता है। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग ने डिस्कस किया था कि मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को ये फॉलो नहीं करती। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। तो ना ही ये सिस्टम हमको इस चीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट करती है कौन सा कैपिटल आइटम है और कौन सा रेवेन्यू आइटम है।
अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018 and 19, Ashok had cash sale of 3,90,000 and the credit sales 1,60,000. His expenses for the year were 2,70,000, out of which 80,000 is still to be paid. Find out the Ashok income for the 2018 and 19 following the cash basis of accounting. एक कोई पर्सन है अशोक, उसकी फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 है। उसने कैश सेल कितना किया 2,90,000 का, और क्रेडिट सेल उसकी कितनी हुई 1,60,000। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करते जो कि क्रेडिट पर हो। और हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000, 2,70,000 उसकी क्या थी, एक्सपेंसेस थी, मगर उसने सिर्फ उसमें से 80,000 ही पेड किया। तो 80,000 पेड इज स्टिल टू बी पेड, मतलब अभी उसको 80,000 पेड करना बाकी है। 2,70,000 में से उसने 1,90,000 पेड कर दिया है और 80,000 पेड करने को बाकी है। इसका मतलब कि हम लोग इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में वो सारे एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नहीं रिकॉर्ड करते, इसीलिए जो है ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब हमको रेवेन्यू कितना है हमको ये पता हुआ दिया गया है क्वेश्चन में 3,90,000। एक्सपेंसेस उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो वो पेड कर चुका है, मतलब टोटल एक्सपेंसेस उसका 2,70,000 था, उसमें से 80,000 रुपये उसने अभी तक पेड नहीं किया। तो 80,000 माइनस कर देंगे, जो बचेगा 1,90,000। तो ये हम लोग टोटल इनकम बता देंगे इसकी कि 2 लाख थी, और 1,60,000 इसकी कैश क्रेडिट सेल थी, तो उसको भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। इट मीन्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर फुली पेड एंड फुली रिसीव। तो उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली द सेकेंड अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एक्यूरेल। इस अकाउंटिंग में क्या होता है कि उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें जो है हम लोग उस इनकम को नहीं रिकॉर्ड करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, रेकर इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। इन चारों चीज़ों को हम लोग क्या थे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड करते थे, मगर इस सिस्टम में इन सारे चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है एक्कर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। तो मेरे ख्याल से कि आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गई होगी। अब इसके भी एडवांटेजेस है बहुत सारे। इट इज़ अ मोर सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज़ प्रेफर्ड बाय द अकाउंटेंट। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मेथड है अकाउंटिंग का, क्योंकि जब हम इसको कंपेयर करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, तो हमारे जो अकाउंटेंट हैं इस एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे फॉलो करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शो अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये पूरी तरह से कंप्लीट पिक्चर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। थर्ड इज द बेसिस, दिस बेसिस डिस्क्लोज द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में 2018-19 उसकी पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको डिस्क्लोज करता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। फोर्थ पॉइंट इज इट रिफ्लेक्ट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हैज़ अ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। ये रिफ्लेक्ट सिमिलरली ये रिफ्लेक्ट क्या करता है प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड को, जो भी अकाउंटिंग पीरियड में उन सारी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, और ये बहुत ही वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये पूरी तरह से हमको सही इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। डिसएडवांटेजेस क्या है? दिस सिस्टम इज़ नॉट अ सिंपल एज अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है एक्यूरेल बेसिस ये इतना सिंपल नहीं है इसका कैलकुलेशन करना जैसे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में था।
अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू एलिब्रेट, इसका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा एलिब्रेट है, बहुत बड़ा है ये सब चीज़। थर्ड पॉइंट, द एक्यूरेट अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मैनी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू ascertain द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। एक अगर हम लोग क्यूक अप्रेजल किसी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें भी जो हमारे और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 4. आफ्टर दैट यू हैव टू solve some questions. You have any confusion regarding the exercise of this chapter and any topic of the chapter, you can ask me question. Thank you.